Hello friends, hope all of you are doing well. We are back with a video. I have interacted with you people multiple times. So to give a brief background about myself, my introduction first of all, my name is Shatabdi Mazumdar and I secured All India rank 80 in UPSC CSE 2019, and my optional subject was anthropology. Currently, I have been allocated Indian Administrative Service and Jharkhand cadre. So this is about my introduction. Talking about my educational background briefly, I come from Agartala, Tripura. I was born and brought up there itself, and I completed my schooling there. After my schooling, I went to NIT Silchar for my graduation. I graduated as an electronics and telecommunication engineering, and thereafter I worked for 2 years in the IT sector in Chennai. And at that point of time, I created a backup option for myself. I prepared for CAT, I got selected, and I went to IIM Udaipur for post graduation in management. After management, I again worked for 2 years I had to take an education loan during my MBA days, and so I had to work again after my MBA. After that, after 2 years of work, I resigned from my job and I came to Delhi for a full-fledged preparation for UPSC. So UPSC journey was not at all easy for me, and I am not an exception. किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. It's not a cakewalk at all. बहुत ज़्यादा competitive exam है, and to tell you about my UPSC journey, it was filled with challenges. प्रीलिम्स ने मतलब इट वॉज़ अ वेरी वेरी बिग हेडेक फॉर मी. बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल था, और मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाई. 2017 में आफ्टर मतलब ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन आई अपीयर्ड फॉर 2017 prelims. I had completed the static part, I had revised the current affairs also, I took some 30-40 mock tests also. But the moment I saw the question paper, I panicked like anything. कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे, जो आ रहा था उसमें भी गलती कर रही थी. And trust me, till date I did not check the marks of the first prelims. इतना बेकार गया था. एंड जैसे ही पेपर 1 ख़त्म करके मैं बाहर आई, आई न्यू फॉर श्योर दैट आई एम नॉट क्लियरिंग द एग्ज़ाम. एंड आज तक ना मैं मार्क्स चेक कर पाई, मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ. आई न्यू वेरी क्लियरली आई एम नॉट क्लियरिंग. तो अगेन सेकेंड अटेम्प्ट आई टुक इन 2018, एंड वो भी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन था. दिस टाइम मैं थोड़ा कम डरी, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ आई डोंट नो, आई कुडेंट रीच द पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल. वो भी एग्ज़ाम देते ही मुझे बहुत अच्छा फीलिंग तो नहीं आया, बट आई थॉट आई मीन बेटर प्रिपरेशन, बेटर एक्सपीरियंस, एंड परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो बेटर देन द लास्ट अटेम्प्ट. आई वॉज इन द बॉर्डर लाइन एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, होपफुल थी मैं कि हो सकता है इस बार निकल जाए. बट अगेन इन 2018 आई गॉट अ शॉक. फिर से नहीं निकला मेरा प्रीलिम्स. एंड 2019 finally I cleared the prelim stage and also the subsequent stages. So this is about it. इस प्रिपरेशन जर्नी में 3 स्टेजेस होते हैं, और ऊपर से इतने सारे बच्चे ये एग्ज़ाम लिखते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन वेरी इजीली असेस दैट द लेवल ऑफ कंपटीशन इज़ वेरी वेरी स्टिफ. ठीक है. तो एंड हर बच्चे का, हर एस्पिरेंट का अलग अलग स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, अलग अलग वीक एरियाज़ होते हैं. बहुत बच्चे मेन स्टेज में अटकते हैं. प्रीलिम्स इज़ लाइक अ केक वॉक फॉर देम, एंड बट दे आर स्टक इन द मेन स्टेज. आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव रिटन मेन्स एवरी टाइम दे अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. प्रीलिम्स इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेन स्टेज में अटकते हैं. So with prelims very close, I mean on 10th October, so I am creating this video for mainly targeted for the mains preparation. ठीक है, how to deal with mains in a better way, in a more focused and organized way, and how to prepare for your main stage even before your prelims.
यहाँ पे आई वुड टेक अ पॉज एंड हाईलाइट माई मिस्टेक्स विच आई कमिटेड इन माई मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, मैंने मेंस का तैयारी कब शुरू किया? वंस आई रोट माई फर्स्ट प्रीलिम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स अ बिग मिस्टेक ऑन माई पार्ट, बट लेट मी टेल यू आई डिड नॉट हैव मच ऑफ अ चॉइस। ठीक है, द एज वॉज नॉट ऑन माई साइड व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। my age was 28 and I only had 3 attempts left। ठीक है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आप मतलब ट्वीक नहीं कर सकते हो। तो जितना टाइम मेरे पास था उतने में मैं बस प्रीलिम्स ही कवर कर पाई। तो ऐसा नहीं कि आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डिडंट मतलब मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ द टाइम एंड आई डिडंट प्रिपेयर फॉर मेंस। ऐसा नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। बट फॉर यू पीपल, फॉर यू एस्पिरेंट्स, आई वुड सजेस्ट दैट even before you appear for your first prelims, you should be thorough with your prelims, not only your prelims but also your mains, right? तो कैसे आप strategize करोगे? What will be your main strategy before prelims? How will you ensure you will make your mains strong even before you appear for your first prelims? These are some of the questions that we are going to answer in this video. Now, talking about my marks in mains, my marks in mains was pretty decent, क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते थे मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियरली था कि इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, आधे घंटे का एक विंडो आपको मिलता है एंड उस आधे घंटे में अगर आप इम्प्रेस कर पाते हो पैनल मेंबर्स को, so there you are, you might score 200, 215, this time 215 is the highest marks. बट अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एनी हेल्थ इशू और मे बी कुछ भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन आपको नहीं आया या आप पैनिक हो गए, आप टेंस हो गए, तो आधे घंटे के बाहर आपको नहीं मौका मिलेगा, राइट? वो आधे घंटे का विंडो फिर से मिलने के लिए आपको 2 स्टेज अगले साल पार करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। तो उस आधे घंटे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेट्स नॉट leave everything for the interview stage. Let's try to maximize the scores in the mains, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा गड़बड़ भी होता है तब भी we can ensure that we are in top 50 or top 100. That's the way I used to think, and somehow it clicked, and I got the benefits of having this strategy of preparing very exhaustively for mains and leave nothing for the interview. एक तो ये इतना छोटा विंडो आपको मिलता है, दूसरा है कि वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस द पैनल मेंबर्स, दे माइट गिव यू अ स्कोर एज लो एज 140, 150, एंड कोई अगर इम्प्रेस कर पाता है, दैट पर्सन माइट गेट अ स्कोर ऑफ 200, 210, 20 ऑल्सो, 215 सो फार इज़ द हाइएस्ट मार्क्स। तो इतना ज़्यादा गैप बिटवीन 140, 150 एंड 210, 215, यू हैव रफली 60-70 मार्क्स का गैप। ठीक है, तो एक स्टेज के लिए नहीं रखते। ऑन द अदर हैंड मेंस में थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से इजी है। एक तो यू आर नॉट फेसिंग अ पैनल, आपका इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। ठीक है, दूसरा है कि एक आधा पेपर अगर थोड़ा गड़बड़ भी चला जाता है, यू हैव कितने 1 essay पेपर, 4 GS पेपर्स, 5 and 2 ऑप्शनल पेपर, 7 पेपर्स टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस। ठीक है, तो आपको इनफ बफर मिल जाता है टू करेक्ट द मिस्टेक्स। ठीक है, सो आई वुड एम्फेसाइज दैट यू प्रिपेयर फॉर योर मेन्स वेरी वेरी एग्रेसिवली एंड रिगरसली। सो टॉकिंग अबाउट माई मेन्स मार्क्स, ऐसे में मुझे मिले 133 मार्क्स। ठीक है, एंड GS पेपर 1 में इट वॉज 111, GS पेपर 2 में इट वॉज 82, GS पेपर 3 में 92 एंड GS पेपर 4 में 138 मार्क्स, ऑप्शनल में टोटल ऑफ 275 मार्क्स। ठीक है, सो आई वुड से दैट इन CSE 2019 इट इज़ अ डिसेंट मार्क। मतलब ऐसा नहीं कि आई गॉट हाइएस्ट इन वन ऑफ द GS पेपर्स और वन ऑफ द ऑप्शनल, हाइएस्ट शायद किसी में नहीं है, पर एक कंसिस्टेंसी है। इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैव स्कोर्ड अबव एवरेज। तो
मतलब कि देयर वॉज कंसिस्टेंसी इन मार्किंग, कहीं भी बहुत पीक नहीं है, कहीं भी बहुत फॉल नहीं है. अबव एवरेज आई हैव मेंटेन्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. So that's the idea that you can also try to implement. Now talking about yes, जो मैं बोल रही थी कि मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. डोंट पोस्टपोन द मेंस प्रिपरेशन till your prelims. Don't do that. Rather, you should have that kind of a planning that you have to wind up your prelims preparation as well as your mains preparation even before you appear for your first prelims. ठीक है. सो व्हाट आई सजेस्ट इज, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डू अ फेज वाइज प्रिपरेशन. तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करते हो, उस टाइम सबसे पहले आप NCERTs लेके बैठोगे. ठीक है, NCERTs को थरोली पढ़ोगे. एंड लाइक आई कीप सेइंग दैट हर NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सारे इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते हैं. करीब करीब 8 से 10 NCERTs है जो बहुत यूज़फुल है. एक जोग्राफी के NCERTs क्लास 11th एंड 12th के, दोज 4 NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमी के अराउंड 2 NCERTs विच डील्स विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, that is important. And for art and culture there is a fine arts book NCERT class 11th, that is important. And likewise करीब yes, the ancient and medieval old NCERTs, those are important. so करीब 8 से 10 NCERTs होंगे मुश्किल से, वो आपको पढ़ने हैं. उसके बाद क्या करना है, you take up the advanced level books or the reference books. For example, Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history, Nitin Singhania for art and culture, Mrunal sir's videos for economy, and so on. So have that grip on the advanced level books or the reference books. Okay, in the third stage of your preparation, you do some mock tests. You take some sectional tests, and that's when you will understand where are the gaps in your NCERT reading and the reference book reading. ठीक है. एंड साइड बाय साइड जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, सेक्शनल मॉक्स देते हो, साइड बाय साइड यू कीप रिवाइजिंग दोज सब्जेक्ट्स ताकि वो गैप्स ब्रिज होता रहे. ठीक है. सो दैट्स वन मेजर एरिया दैट यू हैव कवर्ड, द NCERTs, द रेफरेंस बुक्स, द मॉक टेस्ट एंड द रिविजन ऑफ द NCERTs एंड द रेफरेंस बुक्स, राइट. उसके बाद आप सेकेंड ब्रॉड लेवल ऑफ जो तैयारी है वो इस स्टेज पे शुरू होना चाहिए. जब आप मेंस फोकस्ड तैयारी करोगे, सबसे पहले यू विल बी वेरी थरो विथ योर मेंस का सिलेबस. ठीक है. यू विल टेक आउट सम रिसोर्सेज जो आपको मेंस के लिए पढ़ने हैं. अगेन देयर ऑल्सो यू प्रोसीड इन अ फेज वाइज मैनर. फॉर एग्जाम्पल, टेक अप GS पेपर 1, उसका सिलेबस आप थरोली देखो, and you take up what are the books that are relevant for GS paper 1. GS paper 1 is very huge, quite vast, and there are 5 to 6 subjects involved in GS paper 1 itself, right. Modern history, art and culture pertaining to ancient and medieval India, then world history, post independence, geography and society, right. So there are total 6 parts in GS paper 1 itself. तो हर एक जो पार्ट है उसमें से आप जो रेलेवेंट सोर्सेस है उसको आप इकट्ठा कीजिए, एंड यू स्टार्ट रीडिंग दोज रिसोर्सेस वन बाय वन एंड सेट अ टाइम लाइन. ऐसे विदाउट सेटिंग अ टाइम लिमिट कि कितने टाइम में आप GS पेपर 1 कवर करोगे, डू नॉट स्टार्ट रीडिंग विदाउट एनी डायरेक्शन. ठीक है. तो आप मतलब से 1 month आई फील is more than enough for covering the what do you call that GS paper 1 mains point of view से. ठीक है. So you set a time limit of 1 month and you cover these 6 portions of GS paper 1. ठीक है. Similarly for GS paper 2 भी be thorough with the syllabus. आप उसके बाद resources इकट्ठा कीजिए, and I feel that around 15 days time is more than enough for covering your GS paper 2. ठीक है. थर्ड में GS पेपर 3 सिमिलर वे में आप रिसोर्सेज कवर कीजिए. अगेन इट्स लिटिल बल्की. इसमें आपका इकोनॉमी रहता है,
आपका एनवायरनमेंट रहता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी इश्यूज, एंड दे आर ऑल लिटिल बल्की. सो यू कैन डिवोट सम 1 month for 25 days around for your GS paper 3 completion. So you will follow the same strategy, resources इकट्ठा करके you read the resources keeping the syllabus in mind. ठीक है. Similarly for GS paper 4 you will do the same thing. GS paper 4 I think 10 to 15 days time are more than enough to cover the syllabus. So that way you cover the entire syllabus of GS. Now comes your optional. You can start either ways. You can start off with your optional first and then move to GS, or the other way around. I personally picked up optional first because I find it a little more tough and more bulky compared to GS. तो आप 2 से 3 महीने डेडिकेट कर सकते हैं. यू बी थरो विद द सिलेबस, यू रीड द रिसोर्सेज एंड ऑल द रेफरेंस मटेरियल एंड ऑल दैट, एंड यू हैव टू मेक नोट्स ऑल्सो पर्टेनिंग टू each of the syllabus pointers. So the idea of covering optional is something like this कि हर syllabus pointer के लिए आपके पास around 2 पेज का notes होना चाहिए. ठीक है. बस 2 पेज के नोट्स में आपको ध्यान रखना है कि देयर शुड ऑल्सो बी वैल्यू एड्स इंक्लूडेड इन योर नोट्स. ठीक है. देयर शुड बी द करंट अफेयर्स पार्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर नोट्स. ठीक है. अभी कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, दे आर वेरी स्टैटिक इन नेचर एंड यू कैन नॉट ऐड एनी करंट अफेयर्स पार्ट इनटू योर नोट्स. So but you have to keep in mind that there should be keywords and key phrases, data, examples and case studies as part of your notes. ठीक है. So syllabus pointers को आपको cover करना है. Around 3 months time I think is enough for any of the optionals, and similarly this is the time breakup for each of the GS papers. Next comes your essay. So essay में you can devote around 10 to 15 days and you prepare your notes across some verticals. By verticals you I mean that when you go through the previous year question paper of say 5, 6, 7 years, you will roughly understand that हर साल पॉलिटी रिलेटेड एक आध इशू पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड कुछ पूछा जाता है ऐसे में, then social sector related it may be women, it may be health, it may be education related essays पूछे जाते हैं, science and tech related like artificial intelligence or maybe science is a boon or a bane, something like that, it is being asked very often. Environment related essays can be asked, something like plastic pollution, something like global warming or something. So ऐसे करके there are some 10 broad topics जिस पे आप prepare करके जा सकते हो. ठीक है. You take some 15 days का time and you read some articles, some 10 articles based on each of the vertical. For example education पे आपने 10 डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से एक आध एडिटोरियल, राज्यसभा डिस्कशन सुन लिया, 2-4 टॉपर्स के कॉपीज़ पढ़ लिया, एंड बेस्ड ऑन दैट यू मेक योर नोट्स ऑन ईच ऑफ द वर्टिकल्स. ठीक है. सो व्हाट इज़ द टाइम लिमिट दैट आई सेड? So this is your first reading of means, right? So 3 months of your what do you call that, optional, which includes reading the resources and preparing your notes. Now GS paper 1 के लिए you give 1 month of time. ठीक है, which includes reading the resources and making notes. अभी GS paper 1 में हर चीज़ में आपको notes बनाने की ज़रूरत नहीं है. Like modern history के लिए if you read the spectrum it is enough, there is no need of making notes for mains, right? Similarly if you are reading world history, जो भी किताब या resource आप पढ़ रहे हो उसमें आप underline करके पढ़ो, there is no need of making notes. Reason being world history से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप पहले 200 पेज का रिसोर्स पढ़ो, उसके बाद आप फिर 7 दिन लगा के उसके नोट्स बनाओ. आई डू नॉट थिंक दैट इज़ वर्थ इट. ठीक है. सो यू रीड इट फ्रॉम द बुक, मार्क इन द बुक एंड रिवाइज दोज मार्किंग्स. ठीक है. Similarly for post independence these are very static things and there is no need to make any notes. That is what I feel. Again geography के लिए notes बनाने की ज़रूरत नहीं है, but society के लिए because it has a static and a dynamic part both,
you can choose to make notes based on the syllabus pointers. एक syllabus pointer ले लो, इसका static part पढ़ो and you read the monthly magazines or maybe the mains 365 of society and you can mark the important things, consolidate the static part and the dynamic part and make your own notes for society. ठीक है, इस तरह से आप वो डिसीजन लोगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स दैट इसमें नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हो मेंस के लिए, ठीक है, जीएस पेपर 2 के लिए, तो पॉलिटी के लिए देर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत. वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल स्टैटिक एंड ये वैसा ही रहेगा. आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेज पलटते हुए पढ़ना है, ना कि प्रीलिम्स रिलेटेड हर फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, नहीं. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू IR इंटरनेशनल रिलेशंस यू कैन मेक नोट्स बेस्ड ऑन हर सिलेबस टॉपिक पे. मान लो बाइलैटरल रिलेशंस, फिर आप उससे कुछ नोट्स बनाओगे. इंडिया US में एक पेज का मान लो 7-8 पॉइंटर्स वाले नोट्स बनाओगे. इंडिया चाइना रिलेशंस रीसेंट डेवलपमेंट से आप नोट्स बनाओगे. तो इस तरीके से यू यूज़ योर डिस्क्रिशन कहाँ पे नोट्स बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है. द आइडिया इज़ टू कवर ईच ऑफ द सिलेबस पॉइंटर्स आइदर फ्रॉम द बुक और योर ओन नोट्स. इट इज़ प्योरली योर चॉइस. ठीक है, सो ऐसा टाइमलाइन बनाओ. 3 months फॉर ऑप्शनल, अराउंड आई थिंक अनदर 3 months to around 3 months for your GS. So around 6 months time you have to prepare for your mains very exhaustively. ठीक है. Now in the next stage, once you have gone through the resources, you have prepared your notes, the next stage is to revise those notes and resources and start answer writing practice. ठीक है. सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको हर दिन अराउंड 7-8 क्वेश्चंस लिखने हैं, विच विल इंक्लूड मे बी 1 or 2 फ्रॉम GS पेपर 1, 1 or 2 फ्रॉम पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4. समटाइम्स यू अटेम्प्ट अ केस स्टडी और सो, समटाइम्स यू ऐड ऑप्शनल का क्वेश्चंस. सो दिस वे 7 to 8 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू राइट एवरी डे. एंड प्रीलिम्स देने से पहले आपको मॉक टेस्ट्स भी देने हैं. आंसर राइटिंग इज समथिंग जो आप कभी छोड़ोगे नहीं. वंस यू हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो आप प्रीलिम्स से खाली 1 महीना पहले छोड़ सकते हो, दैट्स इट. अदरवाइज योर राइटिंग गेट्स डिटीरियोरेटेड. ठीक है, आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू हैंडल वेरी रैंडम क्वेश्चंस जिसके लिए आपके पास कंटेंट या नॉलेज नहीं है, तब भी आप बहुत अच्छा लिख के आओगे. लेकिन आप अगर 2 दिन लिखते हो, 5 दिन नहीं लिखते हो, दिस इज़ वेरी हार्मफुल. तो राइटिंग प्रैक्टिस आप कभी मत छोड़िए, बारिंग 1 month बिफोर प्रीलिम्स. तब आपको ऑब्वियसली बिल्कुल ही प्रीलिम्स फोकस्ड पढ़ाई करना पड़ता है एंड उतना टाइम भी नहीं मिलता है. वो टाइम आप छोड़ सकते हो. ठीक है. सो येस, दैट इज़ अबाउट इट. 3 months ऑफ ऑप्शनल, 3 months ऑफ GS and maybe 1 or 2 months of आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. 1 or 2 months मतलब ये नहीं है कि 1 or 2 months लिख के आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है. इट विल कीप, यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट. ठीक है. 1 or 2 months मीन्स 1 or 2 months में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करोगे ही. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो रिवाइज योर ऑप्शनल एंड GS 1 or 2 times इस दौरान. ठीक है. तो प्रीलिम्स अगर हम बैक कैलकुलेशन करते हैं, अब है असली खेल. ठीक है. अगर प्रीलिम्स मान लो अक्टूबर को है, ठीक है, मान लो 10th October नहीं 1st October को है, ठीक है, तो आप एक बैक कैलकुलेशन कर लो. ठीक है, कि जो सितंबर का मंथ है, 1 month टू प्रीलिम्स जब बाकी रहेगा, तब आप छोड़ दोगे. आप आंसर राइटिंग भी छोड़ दोगे, आप ऑप्शनल का रिवीजन भी छोड़ दोगे, GS का रिवीजन भी छोड़ दोगे. ठीक है, वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है इतना सारा चीज़. हालांकि अगर आप कवर कर पाते हो, अगर आप प्रीलिम्स में बहुत कॉन्फिडेंट हो, तब आप 2 घंटा लास्ट मंथ में भी निकाल सकते हो. बट फॉर द एवरेज पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई माई सेल्फ कुड नॉट devote time in the last few months to prelims because for me prelims was a very big challenge. पर अगर आप लोगों के साथ वैसा नहीं है तो इवन इन द लास्ट मंथ आप 1 घंटा निकाल सकते हो फॉर योर ऑप्शनल प्रिपरेशन रिविजन. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल, मोस्ट ऑफ द पीपल, 1 month
आप सब कुछ छोड़ दो प्रीलिम्स से पहले, बस प्रीलिम्स की तैयारी करो, ठीक है। एंड 1 मंथ से पहले का जो आई एम कीपिंग 4 मंथ्स टाइम फॉर योर प्रीलिम्स, 4 मंथ्स प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी, ठीक है। उसमें से पहले जो 3 मंथ्स है, पहले 3 मंथ्स में व्हाट यू डू इज़ 1 आवर ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड 1 आवर ऑफ ऑप्शनल रिविजन। ये 2 घंटे आप मेंस को दे दो, बाकी आपका जो रिमेनिंग स्टडी आवर्स है 10 आवर्स 12 आवर्स जितना भी है आप प्रीलिम्स को दे दो, ठीक है। यू कंटिन्यू दिस फॉर मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 एंड मंथ 4 में आई सजेस्ट that you skip the optional revision also and you skip the answer writing also, you focus fully on the prelim stage, clear। तो prelims जब भी है उसके लिए आप 4 महीने रखो, 4 महीने में पहले 3 मंथ्स में आप 2-2 घंटे निकाल के आप इसको दे दो, किसको, मेंस की तैयारी को। मेंस की तैयारी मतलब 1 घंटा आप ऑप्शनल के रिविजन को दे दो एंड 2 घंटा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को दे दो। अब यू माइट आस्क दिस क्वेश्चन कि 1 घंटे में तो ऑप्शनल का कुछ भी रिवाइज नहीं होता है, तो धीरे धीरे योर स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। आप अगर पहली बार ऑप्शनल रिवाइज कर रहे हो, आप 1 घंटे में 1 यूनिट रिवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अगर अपने 4th या 5th रिविजन में हो, आप बड़े आराम से 1 घंटे में 1 यूनिट रिविजन कर लोगे, ठीक है। तो दैट इज़ द लेवल वी आर ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। ऑप्शनल को रिवाइज करना छोड़ोगे तो इट्स अ लॉस, बिग लॉस फॉर यू, क्योंकि आप तुरंत सब भूल जाओगे एंड फिर आपको फ्रेश सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है सेम लेवल पे रीच करने के लिए। तो दैट्स माय हम्बल सजेशन टू यू पीपल दैट डू नॉट लीव ऑप्शनल, जब तक आप मैनेज कर पाते हो आप नहीं छोड़िए, ठीक है। तो सो दैट्स द प्लान एंड बिफोर 4 मंथ्स, तो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 एंड देन यू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स। तो यहाँ तक तो हो गया। बिफोर 4 मंथ्स क्या करोगे, ठीक है। दैट्स द फेज आई वाज सेइंग, बिफोर 4 मंथ्स यू कीप अराउंड 7 to 8 मंथ्स फॉर मेंस फोकस्ड स्टडी, ठीक है। उसमें आप 3 मंथ्स ऑप्शनल पढ़ोगे, आप नोट्स बनाओगे, उसके बाद जीएस पढ़ोगे, जीएस के नोट्स बनाओगे, एसए पढ़ोगे, एसए के नोट्स बनाओगे एंड देन यू विल रिवाइज ऑल दोज रिसोर्सेज, यू विल डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड यू विल गिव सम मॉक टेस्ट्स। सो इसके लिए आप रखोगे अराउंड 7 to 8 मंथ्स, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको हेक्टिक हो जाएगा, रश हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर थिंग्स, ठीक है। सो दैट्स द रफ आइडिया प्रीलिम्स से पहले कैसे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। अराउंड 4 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी। प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी मतलब आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे, एडवांस लेवल बुक्स पढ़ोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे एंड फिर रिवाइज करोगे, ठीक है। सो दिस इज 4 मंथ्स। नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स आप मेंस फोकस्ड स्टडी करोगे, जिसमें आप रिसोर्सेज पढ़ोगे, आप नोट्स बनाओगे, आप रिवाइज करोगे, आप आंसर राइटिंग करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे। अगेन नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है उसमें आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हो, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा बहुत ऑप्शनल पढ़ रहे हो एंड बाकी का टाइम आप प्रीलिम्स को दे रहे हो। लास्ट 1 मंथ टू प्रीलिम्स, फुल्ली प्रीलिम्स, देन यू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स, राइट। तो क्लियर, फर्स्ट 4 मंथ्स क्या है, प्रीलिम्स पढ़ना है, एनसीईआरटीज पढ़ना है, एडवांस लेवल बुक्स पढ़ना है, सेक्शनल टेस्ट्स देने हैं एंड देन यू विल डू द रिविजन ऑफ योर एनसीईआरटीज एंड एडवांस्ड लेवल बुक्स। नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स आप क्या करोगे, नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में आप मेन स्पेसिफिक पढ़ाई करोगे एंड अगेन नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या करोगे, अगेन इंटीग्रेटेड स्टडी करोगे, थोड़ा बहुत ऑप्शनल, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग एंड रिमेनिंग प्रीलिम्स। फाइनली जब आप प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हो देन यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। वाई, आपने प्रीलिम्स एक बार पढ़ा, आपने मेंस की तैयारी बहुत जम के किया, आपके नोट्स रेडी है, आपने रिवाइज किया, आपने आंसर राइटिंग किया, आपने मॉक टेस्ट्स भी दिए एंड सो यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बाय द टाइम यू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स। तो ये टाइमलाइन कितना हुआ, 4 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स, 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, 16 मंथ्स। 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, 16 मंथ्स कैन बिकम 18 मंथ्स और 20 मंथ्स, बट आप ये बात समझ पा रहे हो ना
कि 20 months time is kind of very very optimal and reasonable time for you to prepare and very very strong बना सकते हो आप both prelims and mains को, अगर आप organized होके focused way में तैयारी करोगे तो। ठीक है। सो जो लोग बोलते हैं ना 6 महीने पढ़ के यूपीएससी क्लियर हो गया या हो जाता है, ट्रस्ट में ऐसे नहीं होता है। अगर मुझे 3 साल लगे उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, इट इज़ नॉट दैट ईजी एन एग्ज़ाम। दैट्स द रीज़न बहुत कम टॉपर्स, बहुत कम लोग पहले अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। सो इफ़ यू आर टेकिंग 20 months or 18 months or 24 months to be strong in prelims or mains, there is no reason for you to crib about it. इतना टाइम लगता है, बहुत बार बहुत लोग सच्चाई बोलते नहीं हैं फॉर सम रीज़न, फॉर सम ईगो प्रॉब्लम, बट सच्चाई यही है कि इस एग्ज़ाम में समय लग जाता है, लग ही जाता है, बिकॉज इतना वास्ट है, इतना फैला हुआ है सिलेबस कि आपको एक बार पढ़ के कुछ रिटेन नहीं होता है। ठीक है। सो दिस इज़ द रफ प्लान ऑफ 16 months। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इट कैन बी 18 months और 20 months। ठीक है। सो येस, दैट इज़ द प्लान हाउ यू विल स्टडी इन अ फेज वाइज मैनर before your prelims. Now how to prepare and revise for your mains between your pre and your mains, I'll take it up in a different video. And yes, बहुत ही कम टाइम मिलता है between prelims and mains, तो आप अगर मेंस की तैयारी प्री से पहले बहुत अच्छे से नहीं करके रखते हो, देन देर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि 90 या 100 डेज़ का टाइम आपको मिलता है, एंड उस 90-100 डेज़ में आपके लिए इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग। एंड अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप तीसरे चौथे बार रिवाइज कर रहे हो, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, पर अगर पहली बार रिवाइज कर रहे हो, इट विल बी वेरी टफ। So what is the idea? The idea is to revise very very properly even before you appear for your prelims. I would say that 60 to 70% of the confidence that you have in mains should be actually sorted out before your prelims itself. ठीक है। जितना प्रैक्टिस, जितना रटना, जितना रिवाइज करना है, ज़्यादातर पार्ट आप प्रीलिम्स से पहले ही निपटा लो। ठीक है। नाउ अ स्मॉल एंड लास्ट पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस, हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड यू गिव बिफोर योर प्रीलिम्स फॉर मेंस। मेंस के कितने टेस्ट आप प्री से पहले दोगे? आई वुड सजेस्ट दैट कम से कम 4 कॉम्प्रिहेंसिव जीएस के टेस्ट्स आप दे दो प्रीलिम्स से पहले। इफ़ टाइम परमिट्स यू गिव 8 टेस्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, ठीक है। जीएस के 4 या 8 डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आपके पास है, मिनिमम 4 तो देने ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 या 8 आप ऑप्शनल के फुल लेंथ टेस्ट्स दे सकते हो, या यू माइट डू समथिंग, पेपर 1 ऑप्शनल के 2 टेस्ट दे दो, एंड पेपर 2 ऑप्शनल के 2 टेस्ट्स दे दो। ठीक है। at least 4 or maybe 8 tests, ठीक है, depending on how much time you have. All right. So and essay के कितने टेस्ट दोगे? Around 4 टेस्ट। तो कम से कम 4 जीएस के, 4 essay के, एंड कम से कम 4 ऑप्शनल के। So 4 + 4 + 4, around 12 tests you have to appear before your prelim stage, ठीक है, for mains. So I think that's the rough plan. Quickly मैं summarize करती हूँ। Around 4 months of your prelims focus study, जहाँ पे आप NCERTs पढ़ोगे, उसके बाद आप reference books पढ़ोगे, उसके बाद आप mock tests दोगे, sectional mock tests दोगे, and you will also revise the NCERTs and the reference books. These 4 months का जो timeline है, that might be extended to 5 or 6 months. That is permissible. ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, मेंस के लिए आपको मैंने दिया अराउंड 8 months. नाउ दीज 8 months कैन बिकम 10 months, नो प्रॉब्लम इन दैट। अराउंड 3 months फॉर ऑप्शनल, आप रिसोर्सेज पढ़ोगे, आप नोट्स बनाओगे। अराउंड 3 months फॉर योर जीएस, एंड अराउंड 15 days to 1 month फॉर योर एसे, जहाँ आप नोट्स बनाओगे, रिसोर्सेज पढ़ोगे, एंड देन यू टेक आउट some maybe you do answer writing practice, you take some mock tests,
एंड यू रिवाइज जहाँ जहाँ पे आपको गैप्स लगते हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऐसे हो. सो दिस इज़ अबाउट 8 months टाइम. ठीक है, उसके बाद फिर आप 4 months टाइम वेर इन यू विल डू सम इंटीग्रेटेड स्टडी, सम पार्ट ऑफ मेंस एंड मैक्सिमम ऑफ द पार्ट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, उसमें से 4 months मैंने दिए फॉर योर प्रीलिम्स, उसमें 3 months what you do is you can continue some 1 hour optional का revision and 1 hour answer writing practice, and last का जो 1 month है that I am giving you totally for prelims, जिसमें आप answer writing practice भी नहीं करोगे, आप optional भी नहीं पढ़ोगे. ठीक है, so that is the rough plan. थोड़ा बहुत आप ट्वीक कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ये मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी है. इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू. दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन और अ फ्रेमवर्क दैट आई एम गिविंग यू. इसमें आप अपने कस्टमाइजेशंस अपने हिसाब से कर लीजिए. एंड कमिंग टू द मॉक टेस्ट, माई सजेशन इज 4 essays, 4 essay tests, which means 8 essays. Okay, and 4 GS के tests, 4 comprehensive, 1 GS paper 1, 2, 3 and 4. हर पेपर का कम से कम एक टेस्ट, इफ टाइम परमिट्स 2 tests पर पेपर. एंड अगेन ऑप्शनल के आप कम से कम 4 टेस्ट दे दीजिए. मे बी फुल लेंथ आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 पेपर्स ऑफ पेपर 1 एंड 4 टेस्ट फॉर पेपर 2. अगर टाइम कम है तो 2 पेपर्स ऑफ पेपर 1 एंड 2 ऑफ पेपर 2. ठीक है, तो इस हिसाब से यू कैन डू. सो द आइडिया इज टू बी मेंस रेडी इवन बिफोर यू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स. So that's all from my end today. We'll take up more of your doubts and we'll make videos depending on what are your queries. So don't forget to send in your queries. ठीक है, so yes, calling it a day for now. Thank you and have a nice day.